under the Protection of Human Rights Act 1993. So it becomes a statutory body. ठीक है? This act was passed by the parliament, obviously, because it is a national level body. ठीक है? 2006 में इस एक्ट को अमेंड किया गया था एक बार. Amended in 2006. Membership इसकी 1+4, chairman plus 4 other members. ठीक है? अभी recently इसका जो tenure है, that has been changed 3 years and 70 years. ठीक है? Whichever is earlier. All right. इनको elect करने के लिए there is a 6-member committee, the members of the National Human Rights Commission, 6-member committee, which includes Prime Minister as the head. Prime Minister heads that committee. Then we have Speaker of Lok Sabha. ठीक है? Deputy Chairman. Deputy Chairman Rajya Sabha. ठीक है? 3 members ये हो गए. इसके अलावा leader of opposition in both houses, Lok Sabha plus Rajya Sabha. And जो 6 member होंगे, that will be Home Minister, Union Home Minister. So this will be the composition of the committee that recommends the names for the National Human Rights Commission under the Protection of Human Rights Act 1993, passed by the Parliament, being a statutory body. Okay, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है. इसमें एक और चीज ध्यान रख लीजिए कि जो सैलरीज हैं, सैलरी अलाउंसेस, the salary allowances and other provisions with respect to NHRC members as well as chairman are determined by the central government. ठीक है? It's determined by the central government. हेडक्वार्टर कहाँ है कमीशन का? हेडक्वार्टर is in New Delhi. The headquarters of the commission are in New Delhi. ठीक है? It is vested with the power. It has power to regulate its own procedure. It has the power to regulate its own procedure. ठीक है? It has all the powers of a civil court. Civil court की powers होती हैं. We are talking about National Human Rights Commission. ठीक है? And its proceedings have judicial nature. The proceedings of NHRC have judicial nature. All right. तो ये बेसिक थे. Obviously इसके जो decisions होते हैं, they are not binding. Government can decide otherwise as well. So they are not binding on the central government. Similarly, on these lines, we have the State Human Rights Commission. State Human Rights Commission, SHRC. ठीक है? Again, the act is the same. The Protection of Human Rights Act. The Protection of Human Rights Act 1993, which makes it again a statutory body. ठीक है? तो जो इसका मैंडेट है, जो स्टेट, इट कैन इन्वेस्टिगेट और लुक इनटू, it can investigate or inquire into the violation of human rights
violation of human rights only with respect to the state list. ठीक है, स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके रिस्पेक्ट में ही ये इंक्वायर कर सकती है, और कॉन्करेंट लिस्ट एज वेल, बट कॉन्करेंट लिस्ट में द सेंटर आल्सो हैज पावर टू लेजिस्लेट। ठीक है, ये कौन सा शेड्यूल में आते हैं आपके? 7th शेड्यूल। ठीक है, अभी जो उसमें भी था, इसकी टेन्योर कितना होता है? टेन्योर विल बी 3 years 70 years, whichever is earlier, and इसका membership 1+2, 1 chairman and 2 other members. As in the case of NHRC, the chairperson should be a retired chief justice of a high court. उसमें retired chief justice और a judge of a supreme court होता है. So retired chief justice or judge of high court. ठीक है, और members कौन होने चाहिए? members should be serving or retired judge of high court, serving or retired judge of high court. ठीक है, इनको अपॉइंट कौन करता है? They are appointed by governor. However, they are removed only by the president. Governor appoint करेगा, removed only by the honorable president. ठीक, नेक्स्ट इसके बाद आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्टैट्यूटरी बॉडी है, दैट इज सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, दैट इज CVC. ओके, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो इसका कब कब बनी है बॉडी, और किस चीज की किस बॉडी की रिकमेंडेशन पे बनी है? ठीक है, ये बनी है आपकी 1964 में, बाय एन एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन of the government of India. By the executive resolution of the government of India. ठीक, कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशंस पे बनी थी? सांथनम कमेटी। सांथनम कमेटी ये बैठी थी जिसके रिकमेंडेशन पे हमारी दो बॉडीज बनी थी, एक CVC और CBI। CBI भी सांथनम कमेटी की रिकमेंडेशंस पे ही बनी थी। 1964 टू 62 टू 4 तक बैठी थी ये कमेटी। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन 1964, एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, सांथनम कमेटी। ऑलराइट, द टर्म ऑफ ऑफिस इसकी जो मेंबरशिप है 1+2 है, चेयरमैन and 2 more members, and the term of office is 465, 4 साल और 65 साल, whichever is earlier. ठीक है, not eligible for reappointment. They are not eligible for further employment. In either state or central government. ठीक है, तो जो कमेटी है जो इनको इलेक्ट करती है, that is a 3-member committee
which consists of Prime Minister, Leader of Opposition in Lok Sabha, and Union Home Minister. ठीक है? This is the committee that elects this. और इनके रिमूवल के लिए वही ग्राउंड्स हैं आपके, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी. Proved misbehavior or incapacity. Okay. इनके जो सैलरी अलाउंसेस वगैरह हैं, सैलरी अलाउंसेस सिमिलर टू यूपीएससी चेयरमैन एंड मेंबर्स. ठीक है, सिमिलर टू देम. क्लियर है? ठीक है, ये सारे जो हमारे गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, ग्रुप ए बी सी, ठीक है, उनको ये रिव्यू कर सकता है. ऑल इंडिया सर्विसेज, ग्रुप ए बी एक्सेट्रा. साथ में ये सुपरिंटेंडेंस एक्सरसाइज करता है ओवर द डीएसपी एक्ट, जो हमने पहले पढ़ लिया है, करंट अफेयर्स में भी शायद पढ़ा होगा कहीं पे. सुपरिंटेंडेंस ओवर दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946. ठीक. सो दिस इज, इसका भी आपका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? नई दिल्ली. इट इज इन न्यू दिल्ली. एंड इट प्रेजेंट्स इट्स रिपोर्ट एनुअली टू द प्रेसिडेंट. अपनी रिपोर्ट एनुअली प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं. ठीक है, एनी डाउट इसमें? कोई डाउट किसी तरह का? सर. हाँ जी, पूछिए. Sir, this particularly this CVC point of view, how does it contribute to fostering a culture that will be reporting the wrongdoings of the public servants or the ministers within the government organization, sir? मतलब आपका सवाल ही नहीं समझा मैं. सर, जैसे कि वो विसल ब्लोअर को प्रोटेक्शन के बारे में सीबीसी ने डिजिग्नेट किया था सर एक ऑफिस. तो सर मतलब मैं एनकरेज कैसे करते होंगे सर कि करप्शन विद इन द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब हाउ दिस दे पब्लिक इंटरेस्ट के. See, the thing is, there are regular audits that keep happening, है ना, कि ऑडिट्स होती रहती हैं कि जो भी सरकार के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें एक सीएजी भी करता है, सीवीसी भी करता है, और भी एजेंसीज हैं जो डिपार्टमेंट्स हैं, दे कीप ऑडिटिंग. इंटरनल ऑडिट्स होते हैं, एक्सटर्नल ऑडिट्स होते हैं, सो दैट दी मिसडूइंग्स, है ना, द मिसफीजेंस एंड malfeasance that is exposed. But obviously there are gray areas, there are certain things which are beyond the control of the machinery also, so things keep happening. Can't help too much about it, but yes, there are checks and balances that are there. So it's obviously the will of the people also, that will of the employees, that kind of needs to be looked into. So that's about it. Yes, sir. Yeah. Moving on. Next topic आपका Central Information Commission. ठीक है, तो आपका कब बना था ये? 2005 में, 2005. ठीक है, एक राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया था आपका. ऑन द बेसिस ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, दिस बॉडी केम इनटू बीइंग. ठीक है, तो क्या करती है ये? दिस लुक्स इनटू complaints, appeals, and other requisitions with respect to central government,
PSUs, UTs etc. मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्बिट में जो भी आएगा वो यहाँ से इसको देखेगा। ठीक है। अभी रिसेंटली आपने केस देखा होगा, द सेल्फी बूथ ऑफ मोदी जी, उसके ऊपर कुछ इशू हो गया, ठीक है ना। उसको उन्होंने RTI के जो इंफॉर्मेशन रिलीज करने का प्रोसीजर और टाइटन कर दिया। तो दीज थिंग्स कीप हैपनिंग। तो इसमें आपकी स्ट्रेंथ है 1+10, 10 से ज्यादा नहीं हो सकते मेंबर्स, एंड अपॉइंटेड बाय अगेन प्रेसिडेंट on the recommendation of a committee consisting of Prime Minister. Then we have LOP in Lok Sabha, and then we have a Union Cabinet Minister recommended by the Prime Minister, nominated by the Prime Minister. These are the three people who will be kind of doing this. एक और इसमें क्लॉज ये है कि they should not be a member of parliament or state legislature. MLA MP नहीं होना चाहिए, ठीक है। And their term of office is 365, ठीक है। Along with that, they are not eligible for reappointment. ये चीजें थोड़ा सा ध्यान में रखनी होती हैं। ठीक। ग्राउंड ऑफ रिमूवल वही है, प्रूव्ड इन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, और एंड और इनकैपेसिटी, इनएबिलिटी टू डू द वर्क, ठीक है। इसके बाद आपकी जो स्टेट लेवल पे जो बॉडी होती है, दैट इज कॉल्ड एज SIC, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक है। हर स्टेट की अलग अलग होती है। इसमें भी वही 1+10, 365, ठीक है। और इसमें जो कमेटी होगी, जो अपॉइंट इसको कौन करेगा, गवर्नर। दैट डिफरेंस यू हैव टू अंडरस्टैंड। गवर्नर अपॉइंट्स on the recommendation of a committee consisting of CM, LOP of the assembly. Obviously most states have assembly only, सब में council नहीं होता है, and state cabinet minister nominated by the CM. So that will be the state election commission की जो committee जो recommend करेगी, ठीक है। Again they need not be MLA और MP, नहीं होना इनको, ठीक है। They should not be MLA और MP. Again the ground will be that, again proved misbehavior capacity, incapacity removal के लिए, ठीक है। तो ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी स्टेट गवर्नमेंट को, सबमिट्स द रिपोर्ट टू द स्टेट गवर्नमेंट which places it in the legislature. ठीक है, स्टेट लेजिस्लेशन में प्लेस कर देगा। तो ये आपका हो गया स्टेट इलेक्शन कमीशन। इसके बाद अगर हम देखें, यहां तक किसी को कोई डाउट? हाँ जी गाइस। नेक्स्ट वी हैव लोकपाल एंड लोकायुक्ता। ठीक है, कब बने ये? लोकपाल लोकायुक्ता एक्ट 2013, 2013 में ये एक्ट आया। सो बोथ आर स्टैट्यूटरी बॉडीज।
ठीक है। अगर हम थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड देखें तो लोकपाल और लोकायुक्ता का सबसे पहले 1809 में स्वीडन में ये इंस्टीट्यूशन शुरू हुआ। स्वीडन बिगैन द इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑम्बड्समैन। ये ऑम्बड्समैन होता है टू कीप अ चेक ऑन दी गवर्नमेंट एक्टिविटीज। ठीक है। उसके बाद न्यूजीलैंड नॉर्वे ने भी अडॉप्ट कर लिया। ठीक है। और इसमें कुछ कुछ कमेटीज आती रही। इंडिया में भी अशोक कुमार सेन कमेटी आई है। अशोक कुमार सेन कमेटी 1960 में, इसने लोकपाल को रेकमेंड किया कि प्रपोज किया। टर्म जो लोकपाल और लोकायुक्ता है वो कॉइन की है एल एम सिंघवी ने। एल एम सिंघवी। ठीक है। 1966 में आपकी जो फर्स्ट एआरसी थी, ठीक है, फर्स्ट एआरसी, दैट आल्सो रेकमेंडेड दिस। ठीक है। इवेंचुअली हमने देखा कि 2013 में हमारा ऑफिस ऑफ लोकपाल केम इनटू बीइंग। ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, किस तरह का होता है? जो लोकपाल में, ठीक है, जो चेयरमैन है, टर्म ऑफ ऑफिस विल बी 5 years और 70 years, 5 साल या 70 साल, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट विल अपॉइंट देम। ठीक। सिलेक्शन कमेटी, कौन कमेटी जो सिलेक्ट करेगी उसमें कौन कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर विल हेड दैट कमेटी। देन you will have speaker, obviously, of the Lok Sabha. Then you have LOP, लोक सभा में जो लीडर ऑफ अपोजिशन होगा। ठीक है। एंड द फोर्थ विल बी CJI और another judge who recommended by him. ठीक है। So this will be the committee that will recommend। ठीक है। तो अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें लोकपाल की, 1+8 मैक्सिमम। ठीक है। चेयरमैन जो होगा वो कौन होना चाहिए? हु शुड बी द चेयरमैन? ही शुड बी ईदर फॉर्मर चीफ जस्टिस और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। या फिर एमिनेंट जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट, और 25 साल का एक्सपीरियंस हो इसको लीगल मैटर्स में, विजिलेंस, करप्शन मैटर्स में। तो जो आपके मेंबर्स होंगे, मेंबर्स मेंबर्स के केस में 50% आपके जो मेंबर्स होंगे वो होने चाहिए इधर SC, ST, OBC, माइनॉरिटी और वुमेन। 50% इस कैटेगरी में बिलोंग करने चाहिए। ठीक है। तो ये एक बेसिक थोड़ा सा आपको लोकपाल के बारे में। ठीक है। सिमिलरली फॉर लोकायुक्ता, लोकायुक्ता स्टेट में होता है। ठीक है। So this is more or less we have completed our constitutional bodies and statutory bodies. Now, what are we left with? Just a second. हमने इमरजेंसी वाला चैप्टर करना है, इमरजेंसी करेंगे फिर आई थिंक पॉलिटी विल बी डन, देन वी कैन मूव अहेड। ठीक है। नेक्स्ट आपका आ गया जो हमारा फाइनल अभी चैप्टर हम करेंगे, देन विल मूव ऑन टू सम अदर टॉपिक ऑफ GS। इमरजेंसी। तीन तरह की इमरजेंसीज होती हैं आपके। फर्स्ट, नेशनल इमरजेंसी। That is Article 352. Then you have President's Rule, Article 356 and 365. Okay, and then you have Financial Emergency, Article 360. ठीक है।
First we will look at national emergency. ठीक है, तो प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकता है किस किस ग्राउंड पे। पहले क्या था, इंटरनल डिस्टरबेंस के ग्राउंड पे भी इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती थी, लेकिन 1978 में कुछ अमेंडमेंट आई, उसने इस चीज को चेंज किया, और अभी हम जो नेशनल इमरजेंसी है दैट कैन बी डिक्लेयर ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन प्लस आर्म्ड रेबेलियन। क्योंकि 1975-76 में जो इमरजेंसी लगी थी, that was considered as a perversion of the constitutional principles, so that checks and balances were introduced later on. ठीक है, तो इसमें क्या, ये चेंज किसने किया था? सिर्फ जो इंटरनल डिस्टरबेंस को रिप्लेस किया, इंटरनल डिस्टरबेंस जो एक टर्म थी उसको रिप्लेस किया आर्म्ड रिबेलियन से। ये आपकी 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में। ठीक है, तो अभी क्या स्टेटस है जो पार्लियामेंट्री अप्रूवल का इसका, it has to be approved, it has to be approved by both houses within 1 month of its proclamation. ठीक है, जब प्रोक्लेम कर दिया प्रेसिडेंट ने, उसके 1 महीने के अंदर अंदर इसको वो करना है। ओरिजिनली इसका 2 महीने का क्लॉज था, जो वही 44th अमेंडमेंट एक्ट ने उसको चेंज कर दिया। लेकिन अगर विद इन दैट पीरियड ऑफ 1 मंथ अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, तो ये सर्वाइव करती है अंटिल 30 days आफ्टर द लोकसभा इज रिकन्वीन। फॉर एग्जाम्पल, ये 1 Jan को प्रोक्लेम हो गई इमरजेंसी, और ये जो 30th Jan के पीरियड के विद इन दीज 30 days पीरियड लोकसभा डिसॉल्व हो गई या लोकसभा सस्पेंड हो गई, कुछ भी, उस पीरियड में अगर राज्यसभा ने इसको अप्रूव कर दिया, तो इट विल सर्वाइव फॉर 30 days टिल दी लोकसभा रिकन्वीन्स अगेन। ठीक है, लोकसभा फिर रिकन्वीन करने तक 30 days के अंदर अंदर वो सर्वाइव करेगी। ठीक है, अगर ये अप्रूव हो जाती है आपकी नेशनल इमरजेंसी, 6 महीने तक ये लास्ट करेगी, 6 months। It lasts for 6 months once approved, and it can be extended for any number of days indefinitely। indefinite extension हो सकती है इसकी, indefinite extension। फिर with periodic approval every 6 months। ठीक है, हर 6 महीने में एक बार इसको अप्रूव करके आप indefinitely इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अप्रूवल के लिए यू नीड स्पेशल मेजॉरिटी। ठीक है, स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ बोथ हाउसेस। स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ बोथ हाउसेस। और इसको रेवोकेशन अगर करना है, यू वांट टू रिवोक द इमरजेंसी, उस केस में सिर्फ लोकसभा का एक रेजोल्यूशन है दैट कैन डू। ठीक है, बाय सिंपल मेजॉरिटी। रेवोकेशन इसकी सिंपल मेजॉरिटी से हो जाएगी। ठीक है, इसके साथ 44th अमेंडमेंट एक्ट ने एक और चीज इंट्रोड्यूस की। अगर 1/10 ऑफ द मेंबर्स 1/10 मेंबर्स कहते हैं कि इसको रिवोक किया जाए, एक रिटर्न नोटिस देते हैं। इफ दे गिव अ रिटर्न नोटिस, 1/10 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, दे गिव अ रिटर्न नोटिस टू स्पीकर, तो 14 दिन के अंदर अंदर ये प्रपोजल कंसिडर करना पड़ेगा रेवोकेशन का। ठीक है, सो दिस इज अबाउट इट। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है नेशनल इमरजेंसी का?
स्टेट पे क्या असर पड़ता है। तो स्टेट का जो एग्जेक्टिव है, ठीक है, इट इज ब्रॉट अंडर कंप्लीट कंट्रोल ऑफ सेंटर। ऑल्दो इट इज नॉट सस्पेंडेड, ठीक है, सस्पेंड नहीं होता, बट सेंटर के कंट्रोल में आ जाए। ठीक। व्हाट अबाउट द लेजिस्लेचर? पार्लियामेंट कैन मेक लॉज on any subject of the state list. Parliament can make laws on any subject of the state list. ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटर एग्जिस्ट करता है, इट कंटिन्यूज, स्टेट लेजिस्लेचर सस्पेंड नहीं होता, बट इट इज सब्जेक्ट टू ओवरराइडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर होता है, उसको सस्पेंड या डिसॉल्व नहीं किया जाता, लेकिन इट इट इज सब्जेक्ट टू द पावर ऑफ द पार्लियामेंट। तो जो पार्लियामेंट लॉ बनाएगा ना, वो इमरजेंसी खत्म होने के विद इन 6 months दे सीज टू ऑपरेट। विद इन 6 months, within 6 months of the see when the national emergency, the proclamation has ended, the parliamentary laws also cease to apply. Okay. इस दौरान प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस भी इशू कर सकता है स्टेट सब्जेक्ट पे। प्रेसिडेंट कैन इशू ऑर्डिनेंसेस। जब लोकसभा या राज्यसभा उसमें नहीं होगी, तो स्टेट उस पे, स्टेट सब्जेक्ट पे ये ऑर्डिनेंस भी इशू कर सकता है। ठीक। नेशनल इमरजेंसी के केस में लोकसभा की लाइफ पे क्या असर पड़ेगा? ठीक है, उसमें क्या होता है कि लाइफ ऑफ लोकसभा can be extended beyond the term of 5 years. ठीक है, by law of the parliament, 1 year at a time, 1 year at a time, for any length, of time. ठीक है। नेक्स्ट आपका आ गया इसके बाद प्रेसिडेंट्स रूल। ठीक है, प्रेसिडेंट्स रूल में क्या होता है? आर्टिकल 356, इसमें जब ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी हो जाता है, या 365 व्हेन स्टेट डज नॉट कंप्लाई टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द सेंटर, तो उस केस में हम प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज करते हैं। तो इसको आपको अप्रूव करना होता है बाय both houses, to be approved by both houses within 2 months. ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू। अगर अप्रूव हो गया, कितनी देर तक चलेगा? 6 महीने तक, 6 months।
और इसका मैक्सिमम टेन्योर कितना है, मैक्सिमम कितनी देर तक आप एक्सटेंड कर सकते हो, 3 साल तक। नेशनल इमरजेंसी में क्या था, इंडेफिनिटली, इसमें सिर्फ 3 साल तक। तो एट अ टाइम 6 महीने, मैक्सिमम 3 साल। तो इसके जो अप्रूवल के लिए मेजोरिटी चाहिए, सिंपल मेजोरिटी चाहिए। ठीक है, सिंपल मेजोरिटी से इसको आप अप्रूव कर सकते हो, अप्रूवल। और इसकी रेवोकेशन कैसे होगी, हाउ डू यू रिवोक इट, सिंपली बाय अ सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन, नो पार्लियामेंट्री अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। रिवोक करने के लिए नो पार्लियामेंट्री अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। ठीक, अब इसका अफेक्ट क्या पड़ता है स्टेट पे, जो स्टेट लेजिस्लेचर या वो सब, उस पर क्या अफेक्ट पड़ेगा। सबसे पहला, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को सस्पेंड कर दिया जाता है या डिसॉल्व कर दिया जाता है। स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स either suspended actually they are dismissed. State council of ministers are dismissed and the powers are exercised by governor on behalf of central government, on behalf of center। गवर्नर पावर्स को एक्सरसाइज करेगा। ठीक है, असेंबली के केस में क्या होता है, जो स्टेट असेंबली है, it is either dissolved, it is either suspended or dissolved। या तो पूरी तरह सस्पेंड कर दिया जाएगा या डिसॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जो बजट वगैरह है, पार्लियामेंट will pass passes the state budget plus the legislative bills, ये सारा पार्लियामेंट के पास आ गया। ठीक है, हमने क्या देखा था नेशनल इमरजेंसी के केस में, जो एक्ट्स नेशनल इमरजेंसी के केस में पार्लियामेंट बनाएगा वो 6 महीने बाद इनऑपरेटिव हो जाएंगे। लेकिन इस केस में अ लॉ कंटिन्यूज टू ऑपरेट ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल, अ लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट continues to operate even after the president's rule is revoked। ठीक है, अब एसआर बोमाई केस में ऐसा भी कहा गया था, एसआर बोमाई केस में कि इट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, कि प्रेसिडेंट रूल मैलिफाइड इंटेंशन पे तो नहीं लगाया। नेक्स्ट आपका जो फाइनल आपकी इमरजेंसी है, दैट इज फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पार्लियामेंट ये बोलेगा कि यू एक्सरसाइज कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी, कि आप ऑस्टेरिटी एक्सरसाइज करो, कम पैसा खर्च करो जितना हो सकता है, कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी।
austere measures. You have to use austere measures. ठीक, तो इसमें क्या होता है कि 2 महीने में अप्रूव करना है इसको भी, 2 months approval within 2 months. ठीक है, and it continues till revoked. सिंपल मेजॉरिटी चाहिए इसके लिए भी। ठीक है, सिंपल मेजॉरिटी से आप प्रोक्लेमेशन इशू कर सकते हो। ठीक है, और इसका कोई मैक्सिमम पीरियड नहीं है, इनडेफिनेट पीरियड के लिए, नो मैक्सिमम पीरियड। एंड रेवोकेशन होती है बाय revoked by president by a subsequent proclamation without any parliamentary approval. Revoked without any parliamentary approval. So guys, this is it about the polity. We are through it.